Hello, welcome to Arc English. Today we are going to learn another important aspect of grammar, advanced grammar, so to say. You see, structural is different, as I have already told you. That structural part is only for the beginners. But whenever you crush that, you will come for applied grammar or advanced grammar, right? So you see, today we are going to learn the use of past tense and the past continuous form. Sometimes we are confused by using them both. So how should they be distinguished? Let us first talk. So I have already told you about simple past tense, and there are also in my first class I have told you that there are many uses of past, but I will explain them as per the time demand. It is my 10 series is a series and it is continuous. You will have to see everything so that you can have a perfect knowledge of tense and time. So you see, as I tell you that simple past tense expresses an action started in the past and ended in the past, right? And with a time adverb, with a definite time adverb, right? Or we can say a time marker. So you see, an action started and ended in the past. You see, this is now or say time of speaking, and this is past and this is future. So an action if happened in the past, started and ended, and that will have no relationship with the present, right? Now के साथ कोई संबंध ना हो, फिर देखो an indefinite past simple का मतलब past indefinite, अतीत में कब भी हो सकता है, राइट? तो देखो, I completed my work. If you see just I completed my work, that will be a wrong sentence, right? But in structural grammar we read I went, मैं गया, राइट? लेकिन मुंह गली मैं गया, कुछ भी हम बोल सकते थे, राइट? लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रक्चरल है। लेकिन हम जब कम्युनिकेटिव पार्ट में आते हैं, जब लिखना शुरू करते हैं, तो दिक्कत आ जाता है। क्या? आई कंप्लीटेड माई वर्क लास्ट नाइट। यू विल हैव टू शो कब हुआ, इसको बताने के लिए हमने लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम लिया। टाइम डेफिनाइट यू कैन ऑल्सो टेक आई कंप्लीटेड माई वर्क एट 9 o'clock, राइट? And I completed my work last month. You can, but there is a time demand. There is a definite time demand. It's a requirement. You will have to give it in past. You see the same things. I was telling you that the present perfect is a present tense, but present is perfect. Present is complete. Again, it expresses a recent past action. I have already distinguished them in 4 major elements. We have already clarified that, and I am just retrieving here. You see, you cannot write I have suppose there is not requirement of time. Suppose तुम बोलना चाहते हो मेरा काम खत्म हो गया, टाइम के बारे में बोलना नहीं चाहते, तो क्या बोलोगे? तो I have already completed my work. So this expresses a finished action. ये finished action के बारे में बोलते हैं, कब हुआ ये जरूरी नहीं। तो देखो, आई हैव नॉट रिसीव्ड माई सैलरी दिस मंथ। यू कैन से आई हैव नॉट रिसीव्ड माई सैलरी दिस मंथ। यू सी दिस इज फिनिश्ड एक्शन, बट दिस इज अनफिनिश्ड टाइम। तो आई हैव नॉट रिसीव्ड, देखो ये पास्ट है, लेकिन हम क्या यूज करते हैं? अनफिनिश्ड टाइम। यहां हम फिनिश टाइम यूज नहीं कर सकते, राइट? यू सी यू कैनॉट यूज आई डिड नॉट रिसीव माई सैलरी दिस मंथ, क्योंकि दिस मंथ तो चल रहा है, this month is continuing. You cannot use this month. So remember, whenever a time past verb or say past simple or say past indefinite is used, always give a completed action time or finished time, right? Maybe it is a duration हो सकता है, but maybe it is a state or a definite time, particular time, clock time we can say. So this is what is past simple we have used. You see, and we have also distinguished
फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट. नाउ यू कम पास्ट कंटिन्यूस. ये कब हम यूज करेंगे? इसका दो यूज हम आज बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. तो देखो, let us first understand what is past continuous. Past continuous is an action, you see, it is an action that was continuing in the past. Present continuous में क्या क्या हम बोलते थे? Present continuous is an action or an activity that is going on at the time of speaking. Right? Similarly, past continuous is an action that was going on in the past, about whose beginning and end we are not concerned. Understand? Understand, class? You see, यहां क्या होता है, यहां भी कंटिन्यू करता है, लेकिन ये भी प्रेजेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका बिगिनिंग एंड एंड वी आर नॉट कंसर्न. तो कई एक्शन, कई वर्क का बिगिनिंग हमको जाना जरूरी नहीं, लेकिन एंड तो पता चलना चाहिए, है कि नहीं? एंड तो पता चलना चाहिए. अगर काम खत्म, हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हम बोले तो हमने सिर्फ बोला मेरा काम खत्म हो गया, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव डन दिस जॉब, राइट. लेकिन अगर सिंपल पास्ट यूज करें तो टाइम का तो बेहद जरूरी है, हमको देना पड़ेगा. लेकिन अगर पास्ट में कोई कार्य, कोई एक्शन चल रहा है, तो क्या करेंगे? अबाउट हुज बिगिनिंग एंड एंड वी आर नॉट कंसर्न. तो इट इज इनकम्प्लीट. सिंपल सा बात है, सीधी सी बात है, ये इनकम्प्लीट बताता है. क्योंकि जहां टाइम नहीं रहा, हम कैसे कंप्लीट मानेंगे? तो यहां हम क्या करते हैं? वी यूज also a time determiner, but not as a word, but as a clause. Clauses, adverbial clauses beginning with when or while. When expresses a point of time and while expresses a period of time. चलो एक सेंटेंस में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना, उसके पास पेशेंस बहुत कम रहता है. हमारे जमाने में हम तो एक्सरसाइज करते चले जाते थे, लेकिन एक एक लाइन हमारे टीचर 1 घंटे करवा देते थे. लेकिन आज का जमाना तो बहुत फास्ट हो गया है, तो मैं एक लाइन में तुम्हें समझाना चाहता हूं, कृपया आप समझ ले, आपकी भलाई के लिए. तो आई वॉज रीडिंग ए बुक. देखो, सिर्फ हम इतना ही बोलेंगे, आई वॉज रीडिंग ए बुक. कब? तो अल्टीमेटली देयर विल बी ए क्वेश्चन कमिंग आउट. कब? तो क्यों? अबाउट हुज बिगिनिंग एंड एंड वी आर नॉट कंसर्न, मीनिंग thereby the time is totally absent but an action was continuing in the past. सो हमको क्या करना पड़ेगा ना? हमको एक टाइम डिटर्मिनर लाना है. क्या पास्ट लाएंगे? लास्ट नाइट एट 9 o'clock? ये हम नहीं कर सकते. क्यों? इसलिए कि ये एक हैबिचुअल एक्शन नहीं है. नंबर 1, हैबिचुअल एक्शन में आप कर सकते हैं, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन में फ्रीक्वेंट रहता है और परमानेंट भी रहता है. अतीत में फ्रीक्वेंट रहता है तो कर सकते हैं, लेकिन यहां आप कर नहीं सकते. तो देखो, आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन माय फादर केम इन. अंडरस्टैंड? व्हेन माय फादर केम इन, यू विल हैव टू शो द टाइम, बट नॉट ए क्लॉक टाइम. You will have to show that another action took place at that time. Whenever a past action was continuing, another action took place. That may be a moment or a duration, right? Ongoing action. Understand? Right. So you see, I was reading a book when my father came in. मेरे पिताजी जब घर में आए, मैं उसी वक्त पढ़ रहा था. सिंपल सी बात आ गया, राइट?
तो देखो दूसरा वाला मैं बता रहा हूं और कौन सा एडवर्बियल क्लॉज इसमें हो सकता है। व्हाइल माय मदर वाज कुकिंग, मेरी मम्मी रसोई कर रहा है, कुकिंग कर रहे हैं, और तब मैं पढ़ रहा था। देखो, तो हमको एक टाइम लाइनर देना है, टाइम मार्कर देना है। तो देखो, और एक भी तरीका है जिनका एस्पेक्ट ऑलरेडी है, मैंने बता चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वही बोल दिया था। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमने ले रखे थे, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, इसमें वो मूड को एक्सप्रेस करने के लिए ऑलरेडी एक एस्पेक्ट है, लेकिन हम उसको कम यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, वही मतलब होता है। इसी तरह I was reading a book all afternoon. You see, all is the adverb with duration of time. I have already written here adverb with duration of time. तो इस कार्य को बताने के लिए हम 3 तरह के adverb क्लॉज और adverbial फ्रेज यूज कर सकते हैं। एक तो पॉइंट ऑफ टाइम का, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम का, और तीसरा एडवर्ब प्रोलॉन्ग्ड एक्शन टाइम, लॉन्ग टाइम, राइट, जो ऑनगोइंग और लॉन्ग ऑनगोइंग टाइम हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ही, राइट। तो यू सी, आई हैड बीन वाटरिंग द गार्डन इन द मॉर्निंग, राइट। तो यहां एक्शन ऑनगोइंग हो गया। जब टाइम ऑनगोइंग हो जाएगा तो भी वही मीनिंग आएगा ना। तो देखो, आई वॉज वाटरिंग द गार्डन ऑल मॉर्निंग, एडवर्ब ऑफ टाइम ड्यूरेशन हो गया, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, राइट। लॉन्ग ऑनगोइंग टाइम ड्यूरेशन हमने दे दिया। एस्पेक्ट को चेंज करो, नहीं तो टाइम को चेंज करो, एक ही अर्थ आएगा। लेकिन हमको कौन सी वाली हमको इजी होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करने की जरूरत नहीं। तो पास्ट कंटिन्यूस में भी हम ये लाइन बना सकते हैं। देखो, वही सेंटेंस तो हमने ये बताना चाहते हैं, लेकिन 3 सिचुएशन हमने दे दिया। When my father came in, while my mother was cooking, I was reading a book all afternoon, right? The whole afternoon I was reading the book, right? टोटल ड्यूरेशन हमने दे दिया। तो यहां कोई भी पूछने की जरूरत नहीं, कब प्रारंभ किया, कब फिनिश किया। तो ये हुआ